Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So we have covered different chapter of this agricultural processing engineering. Okay, last में हमने जो cover किया था, that was about the cleaning, sorting, and grading of agricultural product. Okay, today we will start our new chapter, which is about the heat transfer. Okay, so again, this is one of the most important chapter in specifically in agricultural processing operation and generally in any engineering structure. Okay, being an engineer, we are interested to design such a structure in which we can store the product at a constant temperature. ठीक है, हमने इस तरह स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने होते हैं कि उसमें जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। ठीक है, अक्सर इस तरह क्या होता है कि बाहर जो एनर्जी होती है या टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होते हैं और इनसाइड हमने एक कांस्टेंट टेम्परेचर रखना होता है। ठीक है, तो उसके लिए या अगर इनसाइड से आउटसाइड आप लोगों ने हीट जो है वो ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, इनसाइड इन्वायरमेंट से आपने हीट को एक्सट्रैक्ट करना है। सपोज इफ यू आर डिजाइनिंग अ कूलिंग सिस्टम और रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ओके, सो अगेन यू विल हैव टू डील विद द हीट। ठीक है, या अगर इस तरह एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप इंटरेस्टेड है कि सपोज इनसाइड टेम्परेचर ज्यादा है, आउटसाइड टेम्परेचर कम है, तो देन ऑब्वियसली द टेम्परेचर विल फ्लो फ्रॉम इनसाइड इनटू आउटसाइड। Okay, or if the inside temperature is higher than the outside temperature is higher than the inside temperature, then the temperature will the heat will transfer from outside into inside. So being an engineer, we are interested to find out the quantification of that heat transfer. ठीक है, कि heat किस तरह एक मीडियम से ट्रांसफर होता है। आप लोगों ने देखे भी होंगे, सुनी भी होंगे अबाउट द कोल्ड स्टोरेज हाउसेस, तो उसको किस तरह डिजाइन किया जाता है। ठीक है, या सपोज इफ यू आर स्टोरिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इन अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, सो हाउ यू विल डील विद द हीट ट्रांसफर अबाउट दैट स्ट्रक्चर, कि उसमें हीट किस तरह इन हो रहा है या उससे हीट किस तरह आउट हो रहा है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, so in this chapter we will discuss about the heat transfer to the structure or heat transfer from the structure. Okay, before going into detail, let's discuss that why heat transfer is important in agricultural processing operation. So as we have discussed that aiding or taking heat from structure or from buildings. Okay, in heat transfer actually we are interested to quantify, yeah, to determine, to find out that how much heat is going outside from a structure or how much heat is going into a structure. Okay, yeah, how you will aid heat into the structure or how you will take heat energy from the structure. Okay, and transfer of heat is the principal unit operation, as we have discussed, in the processing of many farm product. Okay, suppose you are drying the agricultural product, yeah, if you are storing the agricultural product, yeah, suppose if you are cooling the agricultural product, yeah, if you are doing any activity with the agricultural product, so this heat must be involved in it. Okay, for example, pasteurization of milk and fruit juices. Okay, जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की, तो आप लोगों की माइंड में क्लियर होना चाहिए, जिस तरह हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, कि एनीथिंग व्हिच वी आर गेटिंग फ्रॉम फीड और फार्म, दैट विल बी कॉल्ड द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ओके, सो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में हमारे पास सपोज फ्रूट जूसेस भी आ सकते हैं, मिल्क भी है, जो लिक्विड प्रोडक्ट होता है ना। सो फॉर द पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क एंड फ्रूट जूस वी विल हैव टू डील विद द ट्रांसफर ऑफ हीट, कि उसके लिए कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है। Pasteurization जो है, that is the to destroy the objectionable microorganism without major chemical changes of the substance. Okay, suppose अगर milk है या fruit juices है, so if there is any objectionable organism, if there is any objectionable microorganism, and suppose you want to kill it, you want to destroy it without any chemical change inside the product, इसमें further कोई chemical changes या disturbances ना आ जाए, जस्ट जो ऑब्जेक्शनेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाए, तो उसको हमने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हीट करना होता है। ठीक है, सो अगेन
ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, आपने उसको हीट करना होगा, उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। सेकंड जो है दैट इज फ्रीजिंग ऑफ फूड। ओके, सपोज अगर आपने फूड को फ्रीज करना है, सो अगेन यू विल हैव टू टेक आउट द टेम्परेचर फ्रॉम दैट प्रोडक्ट। ओके, उस प्रोडक्ट से आपने टेम्परेचर टेक आउट करना होगा ना, हर एक प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होती है, तो उसको आपने क्या करना है, फ्रीज करना है। सो हाउ यू विल फ्रीज इट, यू विल हैव टू टेक आउट द हीट फ्रॉम दैट प्रोडक्ट। Similarly, cooling of fruits and vegetable, again there is the difference between freezing and cooling. जिस तरह हमने डिस्कस किया था, the difference between drying and dehydration. So cooling is the reducing the temperature of a product up to a predetermined level. ठीक है, अगर टेम्परेचर को आप एक स्पेसिफिक लेवल तक डिक्रीज कर दें तो उसको हम कूलिंग कहेंगे, और अगर टेम्परेचर को आप फ्रीजिंग लेवल तक ले आए, 0 से 4 डिग्री सी के दरमियान ले आए, तो वो फ्रीजिंग होगा, ठीक है। Again, in cooling and freezing, we will have to take out the heat from the agricultural product. Next जो होते हैं थर्मल स्टेरिलाइजेशन होते हैं। आप कैन फूड्स, जिस तरह हम फ्रूट्स जो है उसको कट करके उसको जो है बंद करते हैं बोटल्स में, ठीक है, तो उसकी फिर क्या करते हैं, थर्मल स्टेरिलाइजेशन करते हैं। थर्मल स्टेरिलाइजेशन इज द रिमूवल ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Remember the difference between again pasteurization and thermal sterilization. Pasteurization is to destroy the objectionable microorganism, okay, and thermal sterilization is the removal of all microorganism and pathogen from an object by subjecting it to high heat or radiation. Pasteurization जो है उसको हम एक स्पेसिफिक लेवल तक हीट कर देते हैं कि जो ऑब्जेक्शनेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाए, और स्टेरिलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हाई हीट पे या रेडिएशन पे हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाए, ठीक है। प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी फॉर वेपोराइजेशन, अगेन सपोज इफ यू हैव टू ड्राई in agricultural product, so then you will have to evaporate some moisture content from it. So how the moisture content will be evaporated from the agricultural product? So again heat energy will be required, you will have to provide some specific amount of heat. Distillation है, okay, suppose if you are separating components from a liquid mixture, okay, suppose अगर हमारे पास एक mixture है उसमें 2 or more than 2 liquids हैं और उसको आप separate करना चाहते हैं, so हम क्या करते हैं कि इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अप टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ स्पेसिफिक लिक्विड। तो उससे क्या होगा, एक लिक्विड जो है उससे इवापोरेट हो जाएगा, फिर दूसरी जगह पे हम उसको क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे हमने इवापोरेट कर दी और यहाँ पे हमने कंडेंस कर दी, तो इसको डिस्टिलेशन कहते हैं, ठीक है। सेपरेटिंग दी कंपोनेंट्स फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर बाय सेलेक्टिव इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। सपोज अगर एक लिक्विड है उससे आपने वाटर को रिमूव करना है, ठीक है, और उसको, या सपोज इन 2 लिक्विड है उसको आपने सेपरेट करना है, तो यू विल हैव टू प्रोवाइड द हीट एनर्जी so that one liquid may be evaporated from it, and then you will have to condense that liquid again, so the 2 liquid will be separated from each other, okay। उसमें 2 एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, एक इवापोरेशन और जो इवापोरेट हो जाए उसको दोबारा कंडेंस करना, that is called distillation. Drying up agricultural product, as we have discussed, that suppose if you have to remove some moisture content from the agricultural product, then you will have to provide some heat energy, okay, to maintain the desirable temperature for bacterial growth in cottage cheese making. One is the destroying of the microorganism, जो हम pasteurization और thermal sterilization में करते हैं, और ये जो है that is maintaining the such a temperature कि bacterial growth जो है उसको एक proper environment मिल जाए। जिस तरह suppose अगर आप उसको करते हैं ना, milk को yogurt में convert करते हैं, so again we will have to provide some टेम्परेचर की उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो जाए, उनकी एक्टिविटी जो है बूस्ट अप हो जाए, सो अगेन वी विल हैव टू प्रोवाइड सम हीट एनर्जी एंड टू रिमूव हीट टू अवॉइड अनडिजायरेबल हाई टेम्परेचर इन फर्मेंटेशन प्रोसेस, ओके। दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन जो फूड प्रोसेसिंग में यूज होता है, दैट इज द जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, सो वी विल हैव टू रिमूव सम हीट एनर्जी फ्रॉम इट, okay। So these are the
different requirement for which we are studying the heat transfer in agricultural processing operation. Okay, for pasteurization of different agricultural product, for freezing and cooling of the different products, thermal sterilization, providing heat for evaporation, distillation, drying, maintaining the temperature of the agricultural product. Okay, तो इस वजह से जो है हम हीट ट्रांसफर को डिस्कस करते हैं. इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन है इसमें? नो सर. अच्छा. Now, also to maintain the constant temperature of certain environment, most importantly, we are interested in also in this one कि अगर आप प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं, so then we will have to maintain a constant temperature. ठीक है, इनसाइड टेम्परेचर जो है, अगर आपने एक प्रोडक्ट को स्टोर करना है लॉन्ग टाइम के लिए, तो आपने उसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्टोर करना होगा कि प्रोडक्ट जो है वो डैमेज ना हो जाए. ठीक है, उसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी स्टॉप हो जाए ना, तो प्रोडक्ट जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए आप स्टोर कर सकते हैं. सो यू विल हैव टू स्टोर अ प्रोडक्ट इन अ कांस्टेंट टेम्परेचर. So this is also one of the important use of the heat transfer. Again, going into details of the different terminologies, first you will have some basic concept about the heat transfer. So heat come under the scientific study of the thermodynamics. Okay? So in thermodynamics, actually that is the concepts of temperature. The study of temperature, heat, and internal energy. Okay, mean the study of the temperature, heat, and internal energy, and the relationship among these terminologies, that is called thermophysics. Mean it is a branch of physics. ठीक है, बिल्कुल क्रैक से स्टार्ट लेते हैं, ग्राउंड से स्टार्ट लेते हैं कि आप लोगों का जो है हीट के बारे में कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए. सो देन यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट्स फॉर द agricultural processing operations. So thermophysics is the study of temperature, heat, and internal energy and their relationships. Okay, फिर मोस्टली हम जो एक टर्म यूज करते हैं that is temperature. तो आप लोगों के ख्याल में टेम्परेचर क्या है? आप उसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं टेम्परेचर को? जी मुराद, how you will define temperature? Sir, the degree of hardness or coolness. Sir, temperature is the heat difference between 2 points. Heat difference between 2 points. जी मंजूर, आपने क्या बताया? जी Sir, the measure of degree of hardness and coolness of a body. अच्छा. See, temperature is the measure of the degree of hardness or coolness of a body with respect to some standard. ठीक है, जब भी आप किसी चीज को मेजर करते हैं तो आपके पास कुछ स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए. सो यू विल हैव टू कंपेयर, you will have to measure the degree of hardness or coolness of a substance of a body with respect to some standard. That is called the temperature of the body. We can say that technically we can say that temperature is the measure of the internal energy. Actually the hardness and coolness of a body is related with the measurement of the internal energy. Okay, and अगर आपके पास एक substance है, so it will have as we know that a substance is composed of different particles. Like हमारे पास atoms होते हैं, atoms के inside पे electron, protons और वो micro particles होते हैं. ठीक है, so if the energies of that particles, the internal energies of a substance, the measurement of that internal energy is called temperature. Yeah, we can say that the sum of the kinetic energy of a substance plus the potential energy associated with the random motion, as we have discussed, like a substance or a matter will composed of atoms. Okay, so the kinetic energy, sum of the kinetic energy and potential energy associated with the random motion of the atom of a substance is called temperature. Okay, so again फिर हमारे पास दो टर्म्स आ जाते हैं ना, एक हॉटनेस है और एक कूलनेस है. सो कूलनेस जो है दैट इज द एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर. जिस तरह हमारे पास डार्कनेस होता है ना, तो डार्कनेस एक्चुअली डार्कनेस नहीं होता, दैट इज द एब्सेंस ऑफ लाइट. ओके, सिमिलरली we have the hotness, we have the internal energies of in a substance.
So the absence of that hotness, we call it coolness. ठीक है? And generally we can say that the measurement of internal energy, the measurement of degree of hotness or coolness of a substance with respect to some standard, that is called temperature. Okay, then we have the different scales, which is called the temperature scales. So the scale which is made for the measurement of temperature is called temperature scale. जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि the measurement of degree of hotness or coolness with respect to some standard. So now that standard is quantified. Okay, that standard is quantified by some scales which are called the temperature scale. तो फिर आपने किसी substance की temperature जो है उस scales के base पे quantify करना होता है. ठीक है? And see, change in temperature जो आ जाता है ना, जिस तरह हमने डिस्कस की कि टेम्परेचर क्या है, that is the measurement of internal energy. So remember the change in temperature also affect the physical state. जिस तरह हमारे पास 3 states होते हैं ना substances की, matters की, gaseous state, liquid state and solid state. So change in temperature can also affect the physical state. अगर suppose internal energy ज्यादा हो जाए, increase हो जाए, तो एक liquid चीज क्या होता है, वो सॉलिड चीज क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. और अगर फर्दरली उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाए तो क्या होता है, लिक्विड चीज क्या हो जाता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है? सो टेम्परेचर कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर. नाउ द स्केल व्हिच इज मेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड द टेम्परेचर स्केल. ठीक है? एक्चुअली स्केल क्या होता है, उसमें 2 रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं. ठीक है? The scale composed of 2 reference point, which is called the fixed points. ठीक है? हमारे पास जो है डिफरेंट स्केल्स है, जिस तरह आप लोगों ने जो है प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी किए हुए हैं, आप लोगों ने देखे भी हुए हैं. सेल्सियस स्केल होते हैं हमारे पास, सेंटीग्रेड स्केल होता है. ठीक है? दैट वाज वी कैन से दैट इन्वेंटेड बाय अ स्वीडिश एक साइंटिस्ट था, सेल्सियस. उसी जिस हमने डिस्कस की कि टेम्परेचर स्केल्स की 2 रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं. रिमेंबर द स्केल कंपोज्ड ऑफ 2 रेफरेंस पॉइंट्स व्हिच आर कॉल्ड द फिक्स्ड पॉइंट्स. ओके, सो इन द सेंटीग्रेड स्केल या इन द सेल्सियस स्केल हमारे पास जो 2 पॉइंट्स हैं, एक 0 डिग्री सी है और एक जो है 100 डिग्री सी है. इसकी स्टैंडर्डाइजेशन क्या है कि द अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, the amount of internal energy of freezing water. Suppose अगर आपके पास freezing water है ना, तो उनकी जो internal energy होगी that will be called 0 degree C temperature. ये एक standardization है. अब ये एक fixed point है, ये reference point है, ये initial scale point है. ठीक है? कि suppose अगर water जो है वो ice form में हो, वो freezing state में हो, तो उसकी जो internal energy होगी, the temperature at that time, the internal energy at that time will be called 0 degree C temperature. Okay, and when the water is at boiling stage, जब वो boiling point level पे हो ना, तो उस टाइम पे जो internal energy होगी, that will be called 100 degree C temperature. अब ये 2 standardization है with respect to the freezing point and boiling point of water. ठीक है? तो अब आप इसको किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को फाइंड करने के लिए आप उसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं. समझ आ रहे? सपोज अगर कोई भी सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी जो है, इफ दैट इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर ड्यूरिंग बॉइलिंग पॉइंट, देन वी विल से दैट द टेम्परेचर ऑफ द गिवन सब्सटेंस इज 100 डिग्री सी. इज इट क्लियर? समझ आ रहा है इसकी? Yes, sir. Acha. See, Yes, sir. So in the Celsius scale, we have 2 fixed point. One is 0 degree centigrade. Second one is 100 degree centigrade. And it is divided into 100 equal part. कि इस टाइम पे जो इंटरनल एनर्जी होगी और इस टाइम पे जो इंटरनल एनर्जी होगी, उस एनर्जी को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें, तो 1 पार्ट ऑफ दैट इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू 1 डिग्री सी. ठीक है? तो अब सपोज अगर इस टाइम पे जो इंटरनल एनर्जी है, अगर किसी सब्सटेंस की एनर्जी इससे 20 टाइम्स ज्यादा हो, सो वी विल से दैट इट्स टेम्परेचर इज 20 डिग्री सी.
ठीक है, अब हमारे पास स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है। ठीक है, 1 डिग्री सी इज दी 1% ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दीज टू फिक्स पॉइंट। अब 1 डिग्री सी की डिफिनीशन आप इस तरह कर सकते हैं, 1 डिग्री सी इज दी 1% ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दीज टू फिक्स पॉइंट। ठीक है, हमारे पास ये एक स्केल हो गया। सिमिलरली जो दूसरा स्केल है, मोस्ट कॉमनली आप लोगों ने सुना भी है, देखा भी है, दैट इज द फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल। सो इसकी जो दो फिक्स पॉइंट है, दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, मीन द इंटरनल एनर्जी एट विच द वाटर इज इन द आइस स्टेट, उस टाइम पे जो एनर्जी होगी इसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। एंड द एनर्जी या द हॉटनेस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द बॉइलिंग पॉइंट, उस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब ये एक और साइंटिस्ट ने जो है उनको ये स्टैंडर्ड्स दिए हैं, दीज आर द फिक्स पॉइंट, दीज आर द रेफरेंस पॉइंट ऑफ द फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, नाउ यू कैन सी दैट in between these two fixed point we have 180 divisions। उसमें कितने डिविजन्स हैं? 100 डिविजन्स है ना। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी है, बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सी है, इनके दरमियान जो डिवीजन है डेट आर 100 डिवीजन। और फ़ारेनहाइट स्केल जो है उसमें फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सो इन बिटवीन दीज टू फिक्स पॉइंट वी हैव 180 डिवीजन्स। ओके, सो फिर आप उससे फाइंड कर सकते हैं कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये कितना परसेंट ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दीज टू फिक्स पॉइंट्स है। ठीक है, तो इसकी बेस पे भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है ना, कि तो किसी भी सब्सटेंस की टेम्परेचर को अगर आपने मेजर करना है, सो यू विल हैव टू कंपेयर इट्स इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सिमिलरली थर्ड जो एक स्केल है दैट इज केल्विन। ठीक है, जो SI यूनिट है उसका टेम्परेचर का, SI है ना केल्विन। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसकी जो स्टैंडर्ड्स हैं दैट इज दी, जिस तरह हमने डिस्कस की ना, ये दो फिक्स पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है। सो इन द केल्विन सिस्टम वी हैव 273 केल्विन पर freezing point of the water and 373 Kelvin for the boiling point of the water. Okay, mean that was a scientist Lord Kelvin. उन्होंने ये दिया हुआ है कि suppose the amount of internal energy of freezing water is termed as 273 Kelvin and the amount of internal energy of boiling water is termed as 373 Kelvin. So in between these two again we have 100 division. We have 100 division. Okay, so आप ये भी कह सकते हैं कि 1 केल्विन टेम्परेचर जो है that is equal to 1 डिग्री सी। समझ आ रहे हैं ना, इनके दरमियान भी 100 डिवीजन है और इनके दरमियान भी 100 डिवीजन है। या यू कैन से दैट 0 डिग्री सी इज इक्वल टू 273 केल्विन इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 100 डिग्री सी इज इक्वल टू 373 केल्विन इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, मीन ये दो लेवल्स है ना, एक बॉइलिंग पॉइंट की और एक फ्रीजिंग पॉइंट की। ठीक है, और कोई पता है आप लोगों को आवर स्केल्स की? ये तीन तो आप लोगों ने सुने हुए हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सी और डिग्री केल्विन। और पता है आप लोगों को? आवर स्केल No, जो sir. है फोर्थ वन दैट इज न्यूटन। Okay, degree Newton, that is also the scale of the temperature. And in degree Newton, the amount of internal energy during freezing point of water is considered as a 0 degree Newton, and the amount of internal energy of boiling water is considered as a 33 degree Newton. Okay, ये different just scales हैं, कॉन्सेप्ट उनका सेम है। जिस तरह हम मास को मेजर करते हैं ना, किलोग्राम में मेजर करते हैं, पाउंड में मेजर करते हैं, ओंस में मेजर करते हैं, ठीक है, स्लग्स में मेजर करते हैं, डिफरेंट यूनिट्स होते हैं ना फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास। सो सिमिलरली वी हैव डिफरेंट स्केल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर या फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, सो
The temperature during freezing point will be considered as a 0 degree Newton, and the temperature during boiling point of water will be considered as a 33 degree Newton. तो उस इसमें कितने डिवीजन है? 33 डिवीजन्स है, ठीक है. सिमिलरली एक और स्केल है विच इज कॉल्ड डेलेस्ले, डिग्री डेलेस्ले, ठीक है. इसकी जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है, ठीक है, फ्रीजिंग स्केल जो है उसका दैट इज 150 डिग्री डेलेस्ले, और इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर पे जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री डेलेस्ले, ठीक है. सिमिलरली एक और जो है मोस्टली इस बुक में भी यूज होता है, हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड रैनकाइन, डिग्री रैनकाइन. ये भी एक स्केल है फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. इसका जो स्केल है या फिक्स पॉइंट है फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज 491.67 डिग्री रैनकाइन, ठीक है. या द इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर ड्यूरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट will be taken is a 491.67 degree Rankine, and the internal energy of water during boiling point will be taken is 671.67 degree Rankine. तो again इसमें 180 divisions है, ठीक है. So these are the different scales. हर स्केल के हमारे पास दो फिक्स पॉइंट्स होते हैं, दो रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं. तो फिर किसी भी सब्सटेंस की अगर आपने टेम्परेचर मेजर करने, सो इट विल बी कंपेयर इन बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट, और अकॉर्डिंगली उस यूनिट के हिसाब से फिर आपने उसको रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है. एंड जनरली सपोज इफ यू आर कन्वर्टिंग द टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्केल. इफ यू हैव टू कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सी टू डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री न्यूटन और डिग्री रैनकाइन, तो इसके लिए एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है, जिस तरह हम कन्वर्ट करते हैं ना कि 1 किलोग्राम में कितने पाउंड्स हैं या 1 पाउंड में कितनी किलोग्राम है. सो यू विल हैव टू कन्वर्ट इट अकॉर्डिंगली. So similarly, if you have to convert a temperature from one scale to another scale, so suppose अगर आपके पास x टेम्परेचर है किसी भी स्केल में, ठीक है, so temperature on one scale minus ice point in that scale. सपोज अगर टेम्परेचर आपके पास डिग्री सी में है ना, डिग्री सेंटीग्रेड में है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपने उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में. सो टेम्परेचर एक डिग्री सेंटीग्रेड, उसका आइस पॉइंट क्या है 0 डिग्री सी, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन. जिस तरह हमने डिस्कस की कि हर स्केल में अपनी डिवीजन होते हैं. फ़ारेनहाइट में 180 डिवीजन है, सेंटीग्रेड में 100 डिवीजन है, न्यूटन में 33 डिवीजन है, रैनकाइन में 180 डिवीजन है, ठीक है. सो टेम्परेचर एट वन स्केल माइनस the ice point of that scale divide by number of division between fixed points is equal to, suppose अगर आपने उसको किसी दूसरी स्केल के टेम्परेचर पे कन्वर्ट करना है, तो सपोज दैट इज y minus the ice point of that scale divide by the number of division between the two fixed point of this scale, number of division. समझ आ गया इसकी? जी सजाद खान. मुराद. यस सर, समझ आ गई सर. यस सर, आ रही. Suppose you are converting the temperature from one scale to another scale. For example, अगर आपके पास कन्वर्ट करना है कि 20 डिग्री सी जो है ये कितने न्यूटन के बराबर होगा, कितने डिग्री न्यूटन के बराबर होगा, ठीक है. सो 20 माइनस आइस पॉइंट इन डिग्री सेंटीग्रेड इज 0 डिवाइड बाय द नंबर ऑफ डिवीजन इन सेंटीग्रेड इज 100 इज इक्वल टू, सपोज यू आर गोइंग टू फाइंड आउट इन टर्म ऑफ डिग्री न्यूटन. सो ये तो अननोन है, इसकी आइस पॉइंट क्या है 0 है, और इसमें डिवीजन कितने हैं 33. So from this you will get the value of y.
that 20 degree C is equal to this much degree Newton. Okay, so that is the relationship between two scales. ये जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स है अबाउट दी हीट ट्रांसफर, जिसमें फिर हम यूज करेंगे इसको, ठीक है, कि एक स्केल से दूसरी स्केल में आपने किस तरह कन्वर्ट करना है, स्केल क्या है, टेम्परेचर क्या है. नाउ द इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर दी मेजरमेंट, ठीक है, हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बेस्ड ऑन दीज टू फिक्स्ड पॉइंट्स, दीज आर बेस्ड ऑन दीज टू रेफरेंस पॉइंट. सो द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड, मोस्टली उसको थर्मोमीटर कहते हैं, ठीक है, thermometer mean measurement of heat, and that are working on the principle of expansion and contraction of liquid. Remember, expansion and contraction of liquid, ठीक है. कि सपोज अगर एक थर्मामीटर है जिससे हम ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको जब हम यूज करते हैं तो उसकी इनसाइड में जो लिक्विड होता है उसकी एक्सपेंशन होती है, टेम्परेचर एक्चुअली इनसाइड ट्रांसफर होते हैं. एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हिच वी विल यूज्ड हियर, कि उस लिक्विड की टेम्परेचर कम होती है और हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होती है. सो दैट इज अ नेचुरल लॉ दैट द हीट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी इनटू लोअर टेम्परेचर बॉडी. सो हमारी बॉडी से टेम्परेचर क्या होता है, थर्मामीटर में ट्रांसफर होता है, और आपने इतने टाइम के लिए उसको रखना है कि दोनों के टेम्परेचर बराबर हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए. सो देन देयर विल बी नो फर्दर हीट ट्रांसफर. सो अकॉर्डिंगली जितना हीट उस थर्मामीटर की लिक्विड को ट्रांसफर हुआ है, तो उस हिसाब से उसमें एक्सपेंशन आएगा. सो इट विल गिव यू दैट द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी इज दिस वन. ओके, नेक्स्ट जो टर्म हम यूज करते हैं, that we have discussed the relationship between two scales, ठीक है. एक और टर्म है, that is the heat. so heat is it is a form of energy. okay, जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि टेम्परेचर क्या है, that is the measurement of internal energy. so that internal energy is called heat. ठीक है, हीट को हम टेम्परेचर की बेस पे क्वांटिफाई करते हैं. जिस तरह हमारे पास मास है ना, तो मास क्या है, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर. इसको आप जो क्वांटिफाई करते हैं तो फिर आपके पास क्या आ जाते हैं, किलोग्राम्स में आ जाते हैं. तो सिमिलरली जो हीट जो है, दैट इज द थर्मल एनर्जी. ठीक है, समथिंग व्हिच फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू द कूलर बॉडी टिल द टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज बिकम इक्वल. मीन अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर की बॉडीज हैं, तो हायर टेम्परेचर बॉडी से जो है वो फ्लो होगा लोअर टेम्परेचर बॉडी पे, ठीक है. और कब तक वो फ्लो होते हैं, कि दोनों जो है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए. ठीक है, या वी कैन से दैट हीट जो है, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री C. then it is called the specific heat of the substance. कि एक सब्सटेंस की एनर्जी जो है, अगर आपने इसको 1 डिग्री C इंक्रीज करना है और उसका मास क्या है, यूनिट मास है, सपोज 1 किलोग्राम है, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, देन इट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस. ठीक है, लेकिन अगर हीट को हम कर ले, तो अगेन दैट इज द सेंसेशन ऑफ वार्मनेस और कूलनेस. अगर किसी भी बॉडी को आप टच कर लेना और आपको जो सेंसेशन फील होता है, आपको जो हॉटनेस और कूलनेस की सेंसेशन फील होता है, दैट इज कॉल्ड हीट. ओके, और अगर हीट ना हो, सो यू विल फील व्हाट, यू विल फील कूल. ठीक है, कूल क्या है एक्चुअली, दैट इज द एब्सेंस ऑफ द टेम्परेचर, दैट इज द एब्सेंस ऑफ द हीट, दैट इज द एब्सेंस ऑफ द इंटरनल एनर्जी. ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हीट कहते हैं. क्लियर है, समझ आ रहे हैं? यस सर. यस सर. अच्छा सर. यस जी. सर. अच्छा, ठीक है. फिर हमारे पास जो है, दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एज वी हैव डिस्कस्ड. दैट सपोज इफ यू हैव 1 यूनिट ऑफ substance, for example of 1 kilogram, okay, and how much heat is required
to increase its temperature by 1 degree C, ठीक है, या 1 केल्विन। तो केल्विन और डिग्री सी जो है उनकी डिवीजन 100 है, तो दोनों बराबर है, इसको याद रखें, ठीक है। 1 डिग्री सी इज इक्वल टू 1 केल्विन। सिमिलरली डिग्री रेनकाइन और डिग्री फ़ारेनहाइट की जो फिक्स पॉइंट है उसमें 180 डिवीजन है, सो 1 डिग्री रेनकाइन इज इक्वल टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, नाउ कोई भी सब्सटेंस है आपके पास, कोई भी मैटर है आपके पास, ठीक है, और सपोज उसका 1 किलोग्राम है, यूनिट मास है, तो उसकी टेम्परेचर को 1 डिग्री सी रेस करने के लिए या 1 केल्विन टेम्परेचर उसका रेस करने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, कितना हीट रिक्वायर्ड है, दैट विल बी कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। या हमारे पास फिर उसकी डिफरेंट यूनिट्स है ना, जॉल, तो एसआई सिस्टम में फिर हम जॉल को यूज करते हैं कि सपोज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोग्राम टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सी, तो जो हीट रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी कॉल्ड जॉल, ठीक है। मीन स्टैंडर्ड फिर जॉल जो हम डिफाइन करते हैं वो वाटर के साथ होता है ना। अगेन the amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of water by 1 degree C or by 1 degree Kelvin। अगर 1 किलोग्राम वाटर है ना आपके पास और उसका आप 1 डिग्री सी टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, दैट विल बी कॉल्ड 1 जॉल। और ये जो होता है मीन अगर 1 किलोग्राम वाटर की टेम्परेचर आप रेस करते हैं ना 1 डिग्री सी, सो इसके लिए 4200 जॉल ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पे 1 जॉल नहीं है ना, ये यहाँ पे हमने जो डिस्कस की, अगर आपके पास 1 किलोग्राम वाटर है और इसकी टेम्परेचर आप रेस करना चाहते हैं बाय 1 डिग्री सी और बाय 1 डिग्री केल्विन, then 4200 joule of energy will be required because joule is the unit of energy. Clear? Similarly एक और यूनिट है कैलोरी जो यूज होते हैं नॉर्मली, आप लोगों ने सुने हुए हैं, जो सपोज अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो क्या कहते हैं कि यू हैव बर्न दिस मच कैलोरीज, सो कैलोरीज इज द यूनिट ऑफ वी कैन से दैट हीट, ठीक है। कि अगर सपोज 1 ग्राम ऑफ वाटर है, 1 ग्राम ऑफ वाटर, और इसकी टेम्परेचर आप रेस करते हैं बाय 1 डिग्री सी, सो इसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड कैलोरी, ठीक है। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सी। सिमिलरली एक और यूनिट है BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है। इसको हम यूज करेंगे इस बुक में या डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में। ब्रिटिश थर्मल यूनिट, that is the amount of heat required to raise the temperature of 1 pound by 1 degree Fahrenheit। सपोज अगर 1 pound of water है ना और उसकी टेम्परेचर जो है उसको आपने 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज करना है, तो इसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी कॉल्ड दी 1 BTU, दैट विल बी कॉल्ड BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है। और एक BTU जो है दैट इज इक्वल टू 252 कैलोरीज, ठीक है। 252 कैलोरीज के बराबर होते हैं, बिकॉज हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स है तो उनके दरमियान जाहिर बात है रिलेशनशिप होगा। या 1 BTU जो है दैट इज इक्वल टू 1055 जॉल्स के बराबर होते हैं 1 BTU, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था या बैकग्राउंड था जो आप लोगों के पास होनी चाहिए व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद द हीट ट्रांसफर फॉर डिफरेंट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। क्लियर? अच्छा, माइक ऑफ कर लेता हूँ। अच्छा, now how the heat energy will be transferred, as we have discussed that we are interested with the transfer of heat from the agricultural product or transfer of heat into the agricultural product. So the heat is transferred by 3 mechanisms. One is called the conduction, second one is the convection, and third one is the radiation. ये 3 mechanisms होते हैं. Now being an engineer, you will have to design a system to transfer
heat into a system or from the system through these mechanism, कि आप किस तरह डिजाइनिंग करते हैं कि सिस्टम से हीट जो है इन तीन मैकेनिज्म या किसी भी एक मैकेनिज्म की बेस पे बाहर चले जाए हीट या सिस्टम के इनसाइड आ जाए। ठीक है, सो conduction is the process by which the heat energy is transferred from particles to particles by collision. For example, if we have metallic substance, ठीक है, एक मेटालिक सब्सटेंस है, सो वी नो दैट कि इसमें क्या होते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें मूवेबल एटम्स होते हैं। ठीक है, सो सपोज अगर यहाँ पे आप हीट ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे आप हीट एनर्जी, इफ यू आर प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी एट दिस वन पॉइंट, so the temperature at this end will be rising as compared to this second end. So when you are providing, when you are when you are providing the heat energy at this one point of the substance, so the atom which are present here, the electrons, the microparticle which are present here, क्या होगी, उसकी internal energy increase होगी. So when the internal energy increased of a particle, so it will start vibration. ओके, उसकी वाइब्रेशन इंक्रीज होगी ना, जब उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसकी वाइब्रेशन इंक्रीज होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, उसकी मूवेबल वेलोसिटी इंक्रीज होगी. सो द पार्टिकल विल ट्राई टू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट इनटू दिस सेकंड सेक्शन, या ड्यू टू द वाइब्रेशन द वन पार्टिकल विल ट्रांसफर द इंटरनल एनर्जी टू अनदर पार्टिकल, it will transfer the energy into its neighbor particle, it will transfer energy to its neighbor particle, and consequently the energy will reach into this second point. So the heat is transferred from this section 1 into section 2 due to the transfer of particle, due to the practical moment of particle, due to the vibration of the particle, due to the practical transformation of particles. तो इस तरह अगर heat energy transfer हो जाए, that is called conduction. ठीक है, mechanism of heat conduction is वाइब्रेशन ऑफ एटम, जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि अगर आपके पास सपोज अगर मेटालिक ऑब्जेक्ट है तो उसमें क्या होता है, देयर आर एटम्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग, सो एट वन एंड सपोज इफ यू आर प्रोवाइडिंग द हीट एनर्जी, सो द वाइब्रेशन ऑफ द एटम विल बी इंक्रीज, एंड ड्यू टू दैट वाइब्रेशन इट विल ट्रांसफर द एनर्जी व्हिच इज रिसीव्ड टू इट्स नाइबरिंग एटम, इट विल ट्रांसफर द एनर्जी टू इट्स नाइबरिंग एटम. ठीक है, तो जो कंडक्शन होता है दैट इज ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एटम, आर एंड that is due to the motion of free electron. कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो तो मूवमेंट करेंगे ना, उसकी अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाए तो यहाँ से यहाँ पे आएंगे, बिकॉज दिस इज द लोअर एनर्जी सेक्शन एंड दिस इज द हायर एनर्जी सेक्शन, and the particles will move from higher energy section into lower energy section, and the heat will be transferred from this one point to point 2. Okay, so for conduction, for the transfer of energy through conduction, material must be required. Remember, conduction takes place due to the vibration, due to the motion of free electrons. So for that purposes, material must be required. And transfer of heat energy between the adjacent molecules not depend on gross movement of material. That is called conduction. Mean ये पूरा material जो है ये move नहीं होता. Okay, but the heat energy is transferred between the adjacent molecules, between the adjacent particles. मीन एक पार्टिकल से दूसरी पार्टिकल पे ट्रांसफर होता है, फिर दूसरी पार्टिकल से नेक्स्ट पार्टिकल पे, नेक्स्ट पार्टिकल से नेक्स्ट पार्टिकल पे, और इस तरह एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है. दैट इज कॉल्ड कंडक्शन. ओके, सो नाउ द सब्सटेंस व्हिच हैव द एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, ये एनी स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस में भी. तो आपके ख्याल में जो कंडक्शन है वो कौन से सब्सटेंसेस में ज्यादा होगा? जी यस, कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द लिक्विड, और उसमें ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द गैसियस. ठीक है, नाउ सी, बीइंग एन इंजीनियर वी आर इंटरेस्टेड इन द क्वांटिफिकेशन. ठीक है, तो अब हमने क्वांटिफाई करना है ना कि सपोज इफ यू हैव अ सब्सटेंस, सो हाउ मच हीट विल बी conducted in it if there is some temperature difference. So the rate of heat transfer by conduction through a substance is, see, heat is represented by a symbol of Q. So the heat transfer is directly proportional to the temperature difference.
ओके सपोज अगर एक सब्सटेंस है ना, यहाँ पे आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, सो सपोज हियर द टेम्परेचर इज T1 एंड हियर द टेम्परेचर इज T2। सो जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो उतना हीट जो है वो क्विकली और ज्यादा ट्रांसफर होगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। सो द conduction through a substance is directly proportional to the temperature gradient. Okay. In the cross-sectional area, the temperature is directly proportional to the cross-sectional area. अगर एक substance की जो cross-sectional area है, जितना area ज्यादा हो उतना particle की moment के लिए space available होगा, so quickly और ज्यादा conduction हो सकता है. Okay. So the heat transfer in conduction is directly proportional to the temperature difference, is directly proportional to the cross-sectional area, and temperature heat transfer is inversely proportional to the length. अगर length ज्यादा हो तो heat जो है वो फिर कम ट्रांसफर होगा, अगर heat कम हो length कम हो तो heat जो है वो quickly और ज्यादा कंडक्ट होगा। ठीक है, सो इसको अगर आप कंबाइन कर लें, so the heat transfer through conduction will be directly proportional to area, temperature difference, and inversely proportional to length. Okay, and when we are removing this sign of proportionality, तो फिर हम क्या करते हैं, एक proportionality constant लगाते हैं, ठीक है, that is K, A temperature difference divided by L. ठीक है, where K is the proportionality constant, और यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है यूज होते हैं which show the decrease in temperature. ठीक है, मीन यहाँ से the temperature is या the heat is transferring from this one point to two point, so here a decrease will occur because यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, हीट ज्यादा है, तभी वो ट्रांसफर हो रहा है ना, so due to the transfer यहाँ पे डिक्रीज आएगा, so इस डिक्रीज की वजह से यहाँ पे हम जस्ट नेगेटिव साइन लगाते हैं, that is a sign of convention which show the decrease in temperature from one point to another point. ठीक है, so this Q, that is the heat rate. Okay, here we will use two symbol for the heat, one is the capital Q and second one is the small q. Okay, small q जो है that is the heat rate, तो यहाँ पे हम small q यूज करते हैं कि सपोज 1 आवर में कितना BTU हीट ट्रांसफर होगा इस मटेरियल से। ठीक है, समझ आ रहा है, मीन कैपिटल Q जो है that is the total quantity of heat in a given time, और ये स्मॉल q जो है that is the rate of heat, that is equal to K thermal conductivity, A is the cross sectional area and that is the temperature gradient. Okay, the difference of temperature between 2 points, इसको क्या कहते हैं, इसको फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन कहते हैं। ये क्यों जो है दैट इज द हीट रेट, कि 1 आवर में कितना BTU हीट जो है वो ट्रांसफर हुआ है, if the cross sectional area of the material is a square feet and the temperature difference between two ends is this much degree Fahrenheit and the distance of the conductivity media is this much feet. Okay, and K जो है that is the proportionality constant which is the thermal conductivity, that is the property of the material, because हर एक material की conduction different होगी, because हर एक material की जो inside उसकी particles होते हैं, atoms होते हैं, उनकी characteristics different होते हैं, so it will have different characteristic, it will have different property of the heat conduction. Okay, so the K is representing the characteristics or the property of the conduction material. ठीक है, कि उसकी कैपेसिटी क्या है, हाउ मच हीट इट कैन कंडक्ट इन 1 आवर if the temperature difference is 1 degree Fahrenheit and the length is 1 feet and the cross sectional area is 1 square feet. ठीक है, सपोज अगर आपके पास एक मटेरियल है ना, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 स्क्वायर फीट है और उसका लेंथ जो है that is 1 feet and the temperature difference between these two ends is 1 degree Fahrenheit. So 1 आवर में इससे कितना हीट ट्रांसफर होगा, that is called the conductivity of that material, that is called the thermal conductivity of that material. ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स की थर्मल कंडक्टिविटीज होते हैं।
ठीक है, यहाँ पे अगर है मैं आप लोगों को दिखाऊँ दिस वन, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें आयरन की, तो आयरन एक टेम्परेचर आप क्या आ रहा है, ये 212 आ रहे हैं, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 34.6 BTU हीट जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं इन 1 आवर इन 1 feet length for 1 square feet cross sectional area, and if the temperature difference is 1 degree Fahrenheit. Okay? Or with respect to the change in temperature of the substance, उसकी conductivity भी change हो जाती है, ठीक है। we will discuss कि किस तरह change हो जाती है, ठीक है। so thermal conductivity जो है that is the measure of the ability of the substance to conduct heat energy. So suppose if you are designing a structure for the processing operation, or if you are designing any structure, तो आप जो मटेरियल लगाते हैं ना, आपने उसकी कंडक्टिविटी को देखना होगा कि उससे हीट किस तरह ट्रांसफर होगा। सपोज नॉर्मली अगर आप लोगों ने देखे हुए जो रूफ्स होते हैं ना, अक्सर रूफ के ऊपर क्या लगाते हैं, वो शीट्स लगाते हैं ना स्टील के, तो वो गर्म होते हैं, फिर उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द कंक्रीट रूफ्स। ये कंक्रीट की कंडक्टिविटी कम होती है, ठीक है। सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ मीडियम दैट डिपेंड अगेन लेंथ, क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर डिफरेंस, टाइम एंड नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। कि एक मटेरियल की जो the characteristics of the material या the property of a material या the ability of a material to conduct the heat energy, again it depends on its length, cross sectional area, temperature difference, time and nature.